آپ دربار میں آئے یا نہ آئے، دنیا کے کسی کونے میں رہیے، مولانا دانگاچی کا فیض آپ پر جاری و ساری ہے۔ گناہگار بندوں کو اپنی پاک سرزمین پر بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے نیککار عبادت گزار بندوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس لائق نہیں کہ اس پاک مقدس پرسکون مجلس میں کوئی بیان کر سکوں، کچھ کہہ سکوں، فقط اللہ رسول قابل مرشدوں کے حکم کے اتباع کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کریں گے، اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ادب کی مجلس جیسا کہ بارہا پیچھے کے علماء اکرام نے بیان کیا، ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے درود شریف سے ہی شروع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اگر روز محشر میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ اگر کوئی انسان قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ قربان جائیے حقانی انجمن دربار سے تعلق رکھنے والوں کہ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہو یا نہ ہو، ہماری نظر وہاں تک نہیں، لیکن اس بات پر یقین کامل ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنے کا کوئی دربار، کوئی طریقہ ہے تو واحد حقانی انجمن دربار ہے۔ اتنی درود شریف ہمارے مرشد پڑھوا رہے ہیں کہ ہماری کیا آج تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی مجلس لگی ہے ساری مجلسوں کو اللہ کے رحمت والے فرشتے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ رحمت الحمدللہ ہمیں اور آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ کوئی کسی بھی طریقے سے روایت ہے کہ ایک نیک کار آدمی کے ذریعے ہزار گناہگاروں کو اللہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، دنیا میں آج اس طریقے سے جو وبا آئی ہے، جو پریشانی، جو گناہ، جو بے پردگی عام ہو گئی، جو ظلم و ستم عام ہو گئے، اگر آج ہم باحفاظت ہیں تو یقیناً حقانی انجمن دربار پانچوں کامل مرشد کا فیض و برکت ہے، جس کے ذریعے سے آج ہم باحفاظت ہیں۔ یہ ادب کا دربار ہے، کہنے سے ادب نہیں ہوتا، زبان سے کہہ دینے سے ادب نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ عمل کرنے سے ادب ہوتا ہے۔ اس چیز کو یقین رکھیے گا۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کوئی بندہ اگر اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے پڑھتے پڑھتے مر جائے، اور اس کا دل اگر قبول نہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، تو یقیناً اس بات پر کامل یقین رکھیے کہ وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا، وہ منافق ہو کے مرا، اور منافق سب سے نچلے جہنم کے درجے میں جائے گا۔ تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کر لینا ہی ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ادب کا جو معاملہ ہے، ادب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ زبان سے ادب کہتا رہے اور اس ادب کے تقاضے میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالتا پھرے۔ میرے دوستوں، یہ مجلس کیسی مجلس ہے؟ اس مجلس کے بارے میں امام حسن بصری سے پوچھئے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل کالا ہو گیا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف تمہارے دل سے نکل گیا، اور تم نماز میں تمہیں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، ذکر کرنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، اللہ اس کے رسول کی طرف چلنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، بلکہ تمہیں دنیا میں لطف ملتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف تمہیں لطف نہیں ملتا، اگر اس طرح کا کوئی مریض انسان ہو چکا ہو، اس طریقے کے مرض میں اگر وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی اولیاء اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کرے۔ جب وہ کسی اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا تو اس مجلس کے بیٹھنے کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ اس کے کالے دل کو نورانی دل والا بنا دے گا۔ میرے دوستوں، یہ حقانی انجمن دربار وہی نورانی مجلس ہے۔ آپ عقیدت لے کے بیٹھے ہیں، آپ سامنے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کونے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے،
वली अल्लाह के पास बैठ जाने से कोई वली अल्लाह नहीं बनता, वली अल्लाह के करीब होने से कोई वली अल्लाह नहीं बनता। कैसे? अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह के रसूल के साथ रहता था, लेकिन दिल में मुनाफिकत थी, दिल में बुग़्ज़ था, दिल में हसद था, दिल में जलन था। यहाँ से राज को लेता था, अपनी जमात में जाता था, कहता था मैंने तो मोहम्मद और मोहम्मद के चाहने वालों को हमने बेवकूफ़ बनाया है। उसके राज को लेकर के आकर के यहाँ बताया, उन्हें तो मैं बेवकूफ़ बनाता फिरता हूँ। अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश करते हैं, या वो इस बात पर गुमान रखते हैं, तो यकीन जानिए कि वो खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्या मतलब? साथ में बैठता था, दिल में मुनाफिकत थी, साथ में रहता था, दिल में मुनाफिकत थी। तो अगर सच्ची अकीदत और मोहब्बत मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह से आपकी है, आप दरबार में आए या ना आए, दुनिया के किसी कोने में रहिए, मौलाना अज़ान गाची का फैज आप पर जारी और सारी है। मेरे दोस्तों, बहुत से पीर भाई, बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमा आज हमारी नज़रों से ओझल हो गए, लेकिन कसम व खुदा की, अल्लाह ने दुनिया से उन्हें वली कामिल बना करके उठाया। उन्होंने पढ़ना जाना कि नहीं जाना, लिखना जाना कि नहीं जाना, कुरान की तफसीर समझ में आई कि नहीं आई, हदीस शरीफ के अल्फाज उनके दिमाग में घुसे कि नहीं घुसे, इससे मतलब नहीं। सिद्ध के दिल से जो मोहब्बत जो उन्होंने अपने मुर्शिद से कर लिया, उस सिद्ध के दिल से मोहब्बत का बदला अल्लाह ने उन्हें वली बनाकर दुनिया से उठा लिया। यह हक्कानी अंजुमन दरबार वली बनाने का कारखाना है, बस खाली सुनते फिरते हैं हम लोग। हमने कभी गौर नहीं किया वली इतना आसान है। इंसान दुनिया में एक विधायक बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, एक बैरिस्टर बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के अपने पूरी ताकत और कुव्वत को फना कर देता है, तो दुनियावी छोटा सा मकाम हासिल करता है। हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे ऐसे मुफ्त में, अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे फोकट में। इतना आसान है, इतना सरल रास्ता है। अगर इतना सरल रास्ता होता तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जो माँ के पेट वली कामिल थे, 17 साल जंगल में जाने की जरूरत न पड़ती। मेरे दोस्तों, अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो नस्ल फारूक आजम से है, जिनके ब्लड में फारूकी खून दौड़ रहा है, कुछ हो ना हो मेरे दोस्तों, ब्लड का अश्क जरूर उसके अंदर मौजूद होता है। रूहानियत ब्लड से भी है, नसब से भी है, ताल्लुक से भी है, जिक्र से भी है, फिक्र से भी है। आपको सूरी जंगल में जाके 14 साल लेट करके इबादत करने की जरूरत ना पड़ती। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अपनी सल्तनत छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल होता तो दुनिया के तमाम फकरा और दुर्वेश अपनी जिंदगी को फकीरी और तंगदस्ती में न गुजारते। अगर अल्लाह के कुर्ब जाने का रास्ता इतना आसान होता तो मेरे नबी शहनशाह की जिंदगी गुजारते, फकीर और दुर्वेश बन के दुनिया में अपनी जिंदगी न गुजारते। मेरे दोस्तों, वली अल्लाह बनाने का कारखाना तो ये जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन वली अल्लाह आप कैसे बनेंगे, इस बात ने सोचा, हमने गौर किया। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन मेरे मुर्शिद ने, वाह कुर्बान जाइए ऐसे कामिल मुर्शिद पर, इस जमाने के अंदर जिन्होंने पहाड़ को भी अपने मुरीदों के लिए रूई के फाहे के जैसे बना दिया। अरे सुभान अल्लाह कहिए। पहाड़ को रूई के फाहे जैसे बनाया। कहा नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, वजीफा पढ़ो पाबंदी के साथ, इसके हलाल खाओ पाबंदी के साथ और खिलाओ भी, और तकवा परहेजगारी करो, तुम अल्लाह के वली बन जाओगे। इतना आसान नुस्खा, इतना आसान नुस्खा। मेरे दोस्तों, जब एक मोमिन मुसलमान नमाज की पाबंदी शुरू कर देता है, नमाज को एकदम वक्त बा वक्त अदा करना शुरू करता है, और इस कुरानी नूरानी वजीफे को जब पढ़ना शुरू कर देता है, तो सबसे बड़ी चीज तो ये कुरानी वजीफा ही है। इस पे पहले सुनिए, ये क्या है, इसमें आज़म है। जितना पक्का यकीन होगा इस वजीफे से,
उतनी जल्दी आप वली बन जाएंगे। ये वजीफा मामूली वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला गौसे आजम का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला सिमनान अजमे मखदूम अशरफ सिमनानी का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला बहाउद्दीन नक्शबंद का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला इस वजीफे को पढ़ने वाला मौलाना अज़ान गाछी का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अलाउद्दीन सोहरवर्दी का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला इंसान दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह के नज़रों के सामने वो उनके मजलिसों में शामिल कर लिया जाता है, उनके हुजूर में आ जाता है, उनकी नज़रों के नजर करम में आ जाता है। ये नूरानी वजीफा मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह ने अपने आप को मोम की तरीके से जलाकर, मोम के तरीके से पिघलाकर हम तक और आप तक रोशनी फैलाई है, पहुंचाई है। नूर की रोशनी, वो रोशनी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को फकीर और दरवेश के मानंद गुजार करके अल्लाह के कुर्ब जा करके अल्लाह को राज़ी और खुश करके हमें और आपको वो अनमोल तोहफा हक्कानी वजीफे के शक्ल में दिया। नमाज की पाबंदी हमारी हो गई, हमने वजीफा भी अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये वजीफा काम कब करता है? ये वजीफा काम उस वक्त करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी हमें मिल जाए टू व्हीलर जो पेट्रोल से चलती है और हम पेट्रोल के बजाय उसमें पानी डाल दें, पानी न डालें, मिट्टी का तेल डाल दें, केरोसिन, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? बताइए, वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी कि उसके इंजन को मैकेनिक ने पेट्रोल जज्ब करने की हैसियत दी है, केरोसिन नहीं खाएगा। जब केरोसिन वो नहीं खाएगा तो नहीं चलेगी। वैसे अल्लाह ने इस जिस्म को रिज़्क़ हलाल खाने के लिए बनाया, और जब ये रिज़्क़ हलाल इस जिस्म के अंदर जाएगा तो रूहानियत का जो नूर हमारे सीने में जगमग जगमग करता है वो और फैलने लगेगा, वो फैलने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर इसी को आप रिज़्क़ हराम के जरिए से जब खाना शुरू करेंगे तो ये जो नूरानियत हमारे सीने में है ना, इस पे काला पर्दा पड़ने लगेगा, और ये काला पर्दा धीरे 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 वो हमारे जो जलते हुए चिराग और नूर को अपने अंदर घेर लेगा, कैद कर लेगा। और जब ये नूरानी, जो ये रूहानी और नूरानी चिराग हमारे सीने में जल रहा है, जब ये कैद में आ जाएगा तो ना हमें हलाल पहचानने की तमीज़ रहेगी, ना हमें हराम पहचानने की तमीज़ रहेगी, ना हमें हक समझने की तमीज़ रहेगी, ना हमें हक बोलने की ताकत हमारे अंदर रहेगी, यहाँ तक कि हमारे अंदर से हक और बातिल का फ़र्क खत्म हो जाएगा। इसीलिए अहयाउल उलूमुद्दीन के अंदर मौलाना गजाली लिखते हैं कि नेक इबादत के 10 हिस्से किए गए। इबादत के 10 हिस्सों में, 10 टुकड़ों में अल्लाह ने इबादत को तकसीम किया, और 9 हिस्सा इबादत ये है कि जिस इंसान ने हलाल खाया और कमाया उसने 9 हिस्सा इबादत कर लिया। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, एक हिस्सा खाली बचा जिसमें रोज़ा भी है, जिसमें नमाज भी है, जिसमें हज भी है, जिसमें ज़कात भी है, जिसके सदका भी है, खैरात भी है, उसने अखलाक भी है। तो सारे इबादत एक हिस्से में और इसके हलाल 9 हिस्से में। रिज़्क़ हलाल भी हमने खाना शुरू किया। जब रिज़्क़ हलाल हमने खाना शुरू किया तो इस वजीफे ने अपना कारनामा दिखाना शुरू किया। रिज़्क़ हलाल ज्यों ज्यों हम खाते रहे ये वजीफा अपना काम करता रहा। और अब आई तकवा और परहेजगारी की बात। तकवा किसको कहते हैं? तकवा वो है, लफ्जी माने में अल्लाह से डरना ही तकवा है। मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, लेकिन जो बंदा अल्लाह से डरेगा उसकी कैफियत क्या होगी? जो बंदा अल्लाह से डरेगा उसकी कैफियत क्या होगी? एक चींटी को भी अपने पैर के नीचे दबने से रोकता फिरेगा कि अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक चींटी भी हमारे पैर से न दबे। ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, अगर दब जाएगी तो अल्लाह के यहाँ इसका भी हमें हिसाब देना होगा। बड़े गुनाह तो दूर की बात है, जब इंसान के दिल में खौफ और डर अल्लाह का आता है तो वो हर काम में अल्लाह को देखता है, हर तरफ वो अल्लाह को देखता है, हर सिमत वो अल्लाह को पाता है। और अल्लाह को पाने के साथ साथ वो इस फिक्र में रहता है कि मेरा कोई ऐसा अमल ना हो जाए मुझसे कि जिससे मेरा रब नाराज हो जाए।
पहली सिफत उसके अंदर आती है कि बुग़्ज़ उसके सीने से निकल जाता है, बुग़्ज़ उसके सीने से निकल जाता है, हसद उसके सीने से निकल जाता है, जात पात उसके सीने से निकल जाता है, ऊंच नीच उसके सीने से निकल जाता है, तफरकाबाजी उसके सीने से निकल जाता है, छोटे बड़े में फर्क उसके अंदर से निकल जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान उसकी नजर में सिर्फ एक अल्लाह के बंदे दिखते, सिर्फ एक अल्लाह का बंदा उसे दिखाई देता है। ये एक शुरुआत होती है, और जब इस पे वो कमाल हासिल करता है तब अल्लाह उसे अपने नूर का एक छोटा सा हिस्सा दे देता है कि लो तोहफे में इसे रखो। जब वो अल्लाह का वो नूर का हिस्सा जब वो पाता है तो अल्लाह के उस चीज का वो मुशाहिदा करना शुरू करता है जो हमारे आपकी आंखों से नजर नहीं आता। ऐसे नहीं बायदीन बुस्तामी ने कहा था कि रोज़े महशर में क़यामत के यहाँ तो रोज़े महशर में खड़े होने से लोग कांपेंगे, और वाजिब वाह बायदीन बुस्तामी की जात, आप कहते हैं कि मैं जहन्नम के दरवाजे पे अपना मुसल्ला बिछा दूंगा। अरे सोचिए कि उस हस्ती का क्या मर्तबा मुकाम है जो जहन्नम के सामने अपने मुसल्ले बिछाने की ताकत और कुव्वत रखता हो। मेरे दोस्तों, तकवा और परहेजगारी इतनी बड़ी चीज है कि जब इंसान इसमें आता है, इस मरहले पे उतरता है, तो उसके अंदर से बुग़्ज़, हसद, किना, अदावत, दुश्मनी जैसी चीज़ें निकल जाती हैं, उसका दिल साफ हो जाता है। हम तो कहते हैं सूफ़ी मौलाना आज़म गाछी रहमतुल्लाह, शाह सूफ़ी मुफ्ती। सूफ़ी का क्या मतलब है? सूफ़ी वो है जिसका दिल साफ हो चुका हो, जिसका कल्ब साफ हो चुका हो, और वो साफ लोग ही लोगों को साफ किया करते हैं। जो खुद पहले साफ हो चुके हैं, जो खुद अल्लाह ने उनको अपना महबूब बना लिया है, अब वो लोगों को अल्लाह तक पहुंचाएंगे। तो ये 5 वक्त नमाज और वजीफ़ा, ये कुरानी वजीफ़ा, हलाल खाना और कमाना, ये चीज़ें अल्लाह तक कुर्ब, अल्लाह को कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। इस पे जो अमल है यही है अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बन जाना। इसमें जो है जितना पक्का आदमी बनता जाएगा अल्लाह उसको उतना ही कबूल करता जाएगा। यह हक्कानी अंजुमन दरबार अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने के अंदर अल्लाह उसके रसूल, एक हदीस शरीफ याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के दरमियान कहा कि मेरे सहाबियों अपने हाथों को बुलंद करो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम सहाबियों ने अपने हाथों को बुलंद किया और जोर से कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे सहाबियों सुनो, जितने लोग यहाँ हाजिर हो सब जन्नती हो। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये फैजान, ये जिक्र, ये फिक्र, ये मज़ा, ये लुत्फ, ये रूहानियत, ये तरीक़त, ये मार्फत, ये दीन के अच्छे असबाब क्या आपके बाद मौजूद रहेंगे? आप दुनिया से चले जाएंगे तो ये मज़ा क्या औरों को मिलेगा? क्या रूहानियत, तरीक़त, मार्फत कायम रहेगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो, ये तरीक़त, ये रूहानियत, ये शरीयत क़यामत तक बाकी रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। जिस दिन ये फैज़ान ख़त्म हो जाएगा उसी दिन अल्लाह क़यामत नाज़िल फरमा देगा। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो ये भी बयान करते हैं कि 73 फ़िरके आपकी जमात में होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे? लोग कैसे समझेंगे कि कौन अल्लाह के उस जमात में शामिल है जो हक्कानी वाली जमात है, जो सच जमात है, जो कामिल लोगों की जमात है, जो अल्लाह के रसूल की जमात है। सब कुरान की बात करेंगे, सब हदीस की बात करेंगे, सब सुन्नत की बात करेंगे, सब तो वही बातें बोलेंगे, आखिर पहचान कैसे होगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की बात बताता हूँ, कुछ मांगता हूँ? या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं मांगा। हमने दुनिया का कोई अजर तलब किया? या रसूलल्लाह, आपने कुछ भी अजर तलब नहीं किया। हमने अल्लाह उसके रसूल की तबलीग की, बात तुम्हें हक तक पहुंचाए, उसके बदले में कुछ तुमसे कबूल किया? या रसूलल्लाह, आपने कुछ भी कबूल नहीं किया। तो याद रखो, जो जमात तुम्हें ऐसी मिल जाए कि अल्लाह उसके रसूल का काम करे बेगरज बेलालच, तो यकीनन वही लोग अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर हैं और कामयाब लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हक्कानी मन दरबार और हमारे पांचों कामिल मुर्शिद इस पर कायम और दायम हैं और इस दरबार से मुंसलिक है। यकीनन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुंसलिक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।